Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good afternoon, everybody. This is lecture number 4 and chapter 3. And the heading of this chapter is a motion in a plane. As we all know that this physics is belonging to NCERT class 11 physics. And this is the continuation part of the types of vector. That's why I've written 4.3.2 types of vector continued. And this series is beta series of physics, which is mine series, which is my version of physics, which is the way of explaining physics in a possible easiest way. That is why I'm calling this series as beta series. Anyhow, so yesterday we left up to unit vectors. Today we are going to make a continuation of that unit vectors where we are going to use the application of that unit vectors the vectors into the vectors in possible dimensions. Okay. So my dear kids, let me take three-dimensional motion where you are going to see the coordinate, three coordinates. ठीक है, तो तीन कोऑर्डिनेट्स आप लोग लेते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आप लोग तीन कोऑर्डिनेट लेते हो, ठीक है। सो तीन कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए एक आप एक्स एक्सिस, फिर दूसरा वाई एक्सिस, देन यू विल कम विद द जेड एक्सिस, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट, थ्री डायमेंशनल मोशन। नाउ let me tell you one thing, my dear kids. Whenever we are showing the direction of any vector, देखो, अगर वेक्टर along the positive x axis चल रहा है, so you need to show the direction of that vector which is moving along the x axis. Since we don't know the magnitude of that vector which is moving along the positive x axis, so what you're going to take here is all about the छोटा वाला magnitude, the possible smallest magnitude over this axis, which is unit magnitude. ये आपका unit magnitude है origin से, ठीक है। So this is unit magnitude. तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको I cap कहोगे. We are taking a convention. The unit vector which is along the x axis will be taken as I cap. तो ये हम एक convention बना रहे हैं, ठीक है। Same arrow mark, the smallest unit vector which is over the y axis. तो अगर मैं यहां से दिखाऊं, so this will be taken as for this unit magnitude with the direction along the positive y axis. Positive y axis के लिए आप क्या करोगे, over which unit magnitude having direction along the y axis आप दिखा रहे हो, we used to call this as j cap. So this is the convention from now onwards we are going to follow. मतलब i cap जो रहेगा यूनिट वेक्टर वो x एक्सिस पे रहेगा, तो वो जो आई कैप है वो पूरे एक्स एक्सिस का जो भी क्वांटिटी रहेगा उसका डायरेक्शन बताएगा, एंड द जे कैप व्हिच इज अ यूनिट वेक्टर, इट विल बी गोइंग टू शोन द डायरेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस पे क्या करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू टेक अ यूनिट वेक्टर ओवर द जेड एक्सिस, ऐसे, वेट, ठीक है, ऐसे, एंड दिस यूनिट वेक्टर विल बी ट्रीटेड एज, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग कहेंगे के कैप। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। तो हमने तीन वेक्टर्स को बनाया, तीन यूनिट वेक्टर्स को बनाया। I cap will be along the x axis, j cap will be along the y axis, and k cap will be along the z axis, where we are showing the direction of all the three vectors. अगर कोई वेक्टर x axis पे है तो उसका डायरेक्शन हम बताने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग I cap along the x axis. अगर हमने यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन बता दिया तो जितना भी मैग्नीट्यूड अलोंग द x एक्सिस रहेगा वो मैग्नीट्यूड, वो स्केलर क्वांटिटी से आप उस यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, कहां पे, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो सेम चीजें वाई एक्सिस पे भी फॉलो करेंगी, जिस जहां पे हम लोग यूनिट वेक्टर जे कैप यूज करेंगे और जो भी मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस पे रहेगा उससे हम जे कैप को मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन सेम एज द जे कैप। तो यही चीज के कैप के साथ फॉलो करेगी, जो कि हम लोग जेड एक्सिस पे डायरेक्शन दिखाने वाले हैं। सिंपल है ना, या सिंपल है, बहुत ही सिंपल। रक्षिता कांबळे, गुड। ओके प्रताप,
Sumit, Shrishti, Umesh, very good. Fine. Okay. Shrishti, Sumit, listen up my dear kids now. तो ये चीज तो आपको क्लियरली पता चल गया क्या फंडा है ऑफ डायरेक्शंस एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है. सो दीज आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एज वेल एज बेस वेक्टर्स, ठीक है. तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन साइड में लिख देते हैं हम लोग, सो दैट वी कैन बाइफरगेट प्रॉपरली चीजें क्या हैं, ठीक है. सो दिस इज द ओके, यस सर, फाइन. सो द इंफॉर्मेशन ऑफ बेस वेक्टर्स, ठीक है. बेस वेक्टर्स का इंफॉर्मेशन, रिलेटेड concepts, related information, ठीक है. We'll go point by point. तो फर्स्ट क्या है, वी आर यूजिंग यूनिट वेक्टर्स हियर. हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स. सो पहला इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे अबाउट यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड, unit vectors are used to denote denote the direction of a given vector, ठीक है. ओके. सो द सेकेंड वन, तो पहला तो आपको पता चल गया कि यूनिट वेक्टर्स क्यों यूज करते हैं. दीज वेक्टर्स विल बी यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर. जो भी वेक्टर आपका दिया गया है, से फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग अ वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, यू आर नॉट टेकिंग अलोंग वाई और जेड, सिंपली एक डायमेंशन यूज कर रहे हो, तो वो जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन आप अलोंग द एक्स एक्सिस दिखा रहे हो. टू शो द डायरेक्शन ऑफ दैट यू आर यूजिंग अ यूनिट वेक्टर कंसेप्ट. नहीं सर, हम लोग वाई पे लेंगे, कोई बात नहीं, तो यू कैन टेक यूनिट वेक्टर्स देयर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और एल्स ऑन द जेड, सेम वे. तो यूनिट वेक्टर को ना तो डायमेंशन होता है ना ही यूनिट होता है. यूनिट वेक्टर्स डू नॉट हैव डायमेंशंस, ठीक है. ना तो उसके पास डायमेंशन होता है, डू नॉट हैव डायमेंशंस, एंड इट हैज नो यूनिट. तो ना उसके पास यूनिट होता है ना ही उसके पास डायमेंशन होता है. मतलब ये कह सकते हो इट हैज नो डायमेंशंस, इट हैज नो यूनिट्स, ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट वी आर मेकिंग अबाउट बेस वेक्टर्स, ठीक है. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस वेक्टर्स कहते हैं, और एल्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, जिससे आप पूरे वेक्टर का डायरेक्शन दिखाते हो, ठीक है, जस्ट बाय मार्किंग आउट. जैसे आप लगाते हो ना, से फॉर एग्जांपल wherever the circle comes while moving over the highway, हाईवे पे जब जाते रहते हो तो वहां पे अगर आपका कोई सर्कल आया, या कोई 4 रूट्स या 5 रूट्स, मोर देन 2 रूट्स वहां पे जुड़ते हैं, then you'll come to know that there will be a fixing of boards. वहां पे एरो मार्क्स लगे होते हैं, on this side सिंदगी, on this side इंडी, ऐसे, है ना. so you used to see the names of the cities. Yeah, simple. That chota wala arrow mark, what it is indicating, you're showing the direction of the city. पूरा लेंथ का जो डायरेक्शन है ना आप दिखा रहे हो उस छोटे वाले एरो मार्क से, दैट इज व्हाट यूनिट वेक्टर. तो उस वाले यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं बेस वेक्टर्स या तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है. सो द थर्ड पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू मेक, द यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये सारे जो यूनिट वेक्टर्स है ना, आर the vectors, are the unit vectors of, wait, oh shit, now this is correct. Okay, are vectors of having unit
मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जो भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं ना, वो कितने होते हैं बच्चों? दोज विल बी हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। पॉइंट यूनिट मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब इतना डिस्टेंस, ठीक है, जो भी वैल्यू है, यूनिट मैग्नीट्यूड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, तो डायरेक्शन तो यहाँ पे बताया गया है, छोटा वाला दिख रहा है आपको? वेट, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो इट इज हियर, सो यू कैन सी हियर डायरेक्शंस, है ना, पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यही चीजें हैं जो पॉइंट्स के द्वारा हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। नाउ एंड यू शुड नो दिस, ये आपका राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सी हियर माय डियर किड्स, इफ यू टेक योर हैंड्स, ये जो मेरा दिख रहा है ये विदाउट हैविंग ग्लोव्स, ये वाला, सो दिस इज लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, तो मैं एल करके यहां पे लिख रहा हूं, एंड दिस इज माय राइट हैंड। तो जो भी अगर क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आता है, whatever the increment will takes place, it will be going to increase along the x axis towards right hand side। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यू शुड बी क्लियर विद दैट, जहां पे आपको सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव मिलेंगे। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होगा बताओ मुझे फट से। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? क्या हम इसको कह सकते हैं लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम? या, है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई? यस, सो यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, ठीक है। तो यहां पे है ना, यहां पे जो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने जो यूनिट वेक्टर्स को डाला है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं पता है? फॉर दिस वी यूज्ड टू कॉल दिस एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जिससे हम पूरे वेक्टर्स का डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। चलो, यू गॉट दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सो शैल आई रब दिस? यहां पे 3 पॉइंट्स तो कवर कर गए हम लोग, ओके। आई हैव कवर्ड 3 पॉइंट्स। सो नाउ इफ इन द theory एग्जाम्स दे विल आस्क यू कि बेस वेक्टर्स क्या हैं, और एल्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट। क्या एक्सप्लेन करोगे बताओ मुझे फट से, फट से बताओ। these are the vectors carrying these are the vectors carrying unit vectors with unit magnitude are called as orthogonal unit vectors, and it is represented in the right hand coordinate system, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? सो आई कैप क्या इंडिकेट करता है बताओ मुझे, व्हाट इट इंडिकेट्स whenever if they will use this term I cap, ये क्या इंडिकेट करता है बताओ मुझे फट से। या, वेरी गुड परिजन, it indicates the direction along x axis, वेरी गुड, ठीक है। फिर जे कैप क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस। फिर के कैप डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस, ठीक है ना, सिंपल है, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, फाइन, ये तो हो गया। चलो, सो दिस इज ओवर माय डियर किड्स। नाउ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एज वेल एज स्पेस वेक्टर्स, ये तो सारा आपका क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द पैरेलल वेक्टर्स। ये पैरेलल वेक्टर्स होते क्या है, ठीक है।
पैरेलल वेक्टर्स। ओके, सी मैं यहां पे डेफिनेशन लिखूंगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यू कैन गिव मी एन एग्जांपल और एल्स, हाँ आप एग्जांपल दे सकते हो वैसे उसके लिए, ठीक है। सो दीज आर द वेक्टर्स, दीज आर द वेक्टर्स, ठीक है। ये वेक्टर्स है हैविंग द एंगल, देखो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि कितने वेक्टर्स है, बस वेक्टर्स हैं। मींस इट मींस दैट इट इज नॉट सिंगुलर, सिंगल नहीं है, सिर्फ दो ही नहीं है, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। मींस इफ दे आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल मींस टू और मोर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हैविंग द एंगल बिटवीन देम between them is either 0 degree or 180 degree. Try to understand my point, my dear kids. पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, एक हो, एक नहीं, दो हो या दो से ज्यादा हो, जिसके बीच में जो एंगल होता है ना, या तो वो 0 हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। लेट मी टेल यू कैसे। विद द रेड एरो मार्क मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। चलो, नाउ से फॉर एग्जांपल आई विल टेक दूसरा वेक्टर, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है बच्चों, इज दिस क्लियर? दो दिख रहे हैं वेक्टर्स आपको? ओके, टू वेक्टर्स डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स, मैं इस पे जाके रखता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना है? क्या कोई बता सकता है? इज दैट 0? या प्रियंका, गुड। अगर ये 0 है, ये देखो मैं कुछ एंगल बना रहा हूं, मैंने कुछ एंगल बनाया है, दिस इज नॉट आइदर 0 नॉर 180, ठीक है ना। ये जो एंगल है दिस इज नॉट 0 नॉर 180, क्या हम इसको पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं? नो, है ना। सो वी कैन नॉट कॉल दिस एज पैरेलल वेक्टर्स, तो ये आपका पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। सो दीज आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। नाउ आई विल गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल वेक्टर्स विद द ग्रीन एरो मार्क्स, ठीक है। देख लो बच्चों, आई एम यूजिंग ग्रीन कलर टू शो द पैरेलल वेक्टर्स आइडिया, ठीक है। देखो, द 0 डिग्री एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। नाउ दिस इज one vector, okay, this is another vector. सर दोनों इक्वल इन साइज हैं सर, क्या इसका साइज छोटा हो सकता है सर ये वेक्टर का? क्यों नहीं बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सर क्या ये तीनों पैरेलल वेक्टर्स हैं सर? अभी कुछ आया दिमाग में, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो दीज थ्री आर पैरेलल वेक्टर्स because they are not anywhere mentioning about magnitude, magnitude should be equal, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला उन्होंने into the definition. If you see properly, these are the vectors having the angle between them is either 0 or 180 degree. यहां पे तो तीनों वेक्टर्स में कितना एंगल है? 0 डिग्री है। या श्रुति के मंदयाना, is that clear? And here is the 180 degree of angle, ठीक है। तो यहां पे क्या रहेगा? इट विल बी कॉल्ड एज, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पैरेलल वेक्टर्स। इसको क्या करेंगे हम लोग? वेक्टर शिफ्टिंग, एज आई सेड इन द लास्ट क्लास, वेक्टर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कंसेप्ट, एक के ऊपर एक को रखा मैंने। सी हियर आई एम शिफ्टिंग द वेक्टर्स, इज दैट क्लियर? यहां पे आपको कितने मिल रहे हैं? तीन वेक्टर्स तो मिल रहे हैं, एक के ऊपर एक। सो नाउ टेल मी, इन बिटवीन दीज थ्री वेक्टर्स एंगल कितना है? 0 है ना, तो इसीलिए पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। चलो, सृष्टि, प्रियंका, रक्षिता, प्रताप, वैष्णवी, नॉट 0 to 180 डिग्री, आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। श्रुति के,
डोंट गेट कंफ्यूज्ड। या तो कंडीशन 180 डिग्री का होना चाहिए या तो 0 डिग्री होना चाहिए, तभी आप उसको पैरेलल वेक्टर्स कहोगे। सो फॉर दिस वन यू कैन नॉट कॉल दिस एज पैरेलल वेक्टर्स, ये आपका पैरेलल वेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल आएगा विच इज नॉट 0 नॉर 180 डिग्री। ठीक है, चलो पैरेलल वेक्टर्स का आइडिया आपके दिमाग में पल्ले पड़ा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू हैव द आइडिया ऑफ लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, ये लाइक वेक्टर्स होते क्या है देखेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, या 0 डिग्री रहेगा या 180 डिग्री। 0 टू 180 डिग्री नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कुछ लोग बच्चे क्या समझ रहे हैं, 0 टू 180 डिग्री ऐसे समझ रहे हैं, विच इज नॉट। ठीक है, मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से चीजों को बता दिया है, लाइक वेक्टर्स। ठीक है, सो दीज आर द वेक्टर्स these are the vectors of same type of same type। ठीक है, having same direction। the below figure shows like vector a and vector b। ठीक है, now so this is vector a, ठीक है, and this is vector b। देखो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So this is vector A and this is vector B, but the magnitude is nowhere same। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, these are the vectors of same type। अभी ये same type होता क्या सर? same type, same type मतलब होती है कि क्वांटिटी एक तो सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी एक तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग डिस्प्लेसमेंट्स एज अ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर बी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हो? इट शुड बी, मैं वाई करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आई एम यूजिंग द सेम थिंग। बोथ शुड बी सेम क्वांटिटी। ठीक है, एंड इट शुड बी हैविंग सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज इट मे नॉट बी सेम इक्वल, ठीक है, बट द डायरेक्शन शुड बी सेम, तो उसको हम कहते हैं लाइक वेक्टर्स। सिंपल है ना? रक्षिता, वैष्णवी, सृष्टि, परी, प्रियंका, सुमित, ओके, गुड, फाइन, वेरी गुड वैष्णवी। So you got that. What I'm trying to say कि like vectors। अनुष्का गुड़ी, ओके, वेरी नाइस। तो मैं एक आपको चीज पूछना चाहता हूं अनुष्का, अभी हमने लाइक वेक्टर्स को देख लिया, अनलाइक वेक्टर्स को हम देखना चाहें। अनलाइक वेक्टर्स, व्हाट इट मींस फॉर अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स, इसी का क्या करते हैं, इसी का कुछ मॉडिफिकेशन करने में आएगा। कैन वी डू दैट? अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है, these are the vectors of same type, same type do not have same direction। very good priyanka, but यहां पे थोड़ा सा जोड़ लूं, but not having same direction। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, we are going to use vector b। ठीक है, तो वेक्टर b को क्या करते हैं हम लोग, we are going to take it as reverse instead of taking माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस बी तो है नहीं वैसे। ठीक है, सो दीज आर अनलाइक वेक्टर्स, हम इसको क्या कहते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। बहुत ही सिंपल है ना बच्चों समझने का तरीका। या प्रियंका, सृष्टि, ओके, प्रियंका राठौड़, वैष्णवी, फाइन, गुड। सो अभी इसको रब करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट फॉर द
इक्वल वेक्टर्स, ये आपको समझ में आएगा ये क्या है अभी। तो पैरेलल वेक्टर्स को हमने बोला था कि 0 डिग्री वाइज 180 डिग्री वाइज को क्या बोला हमने, पैरेलल वेक्टर्स बोला। देन वी कैटेगराइज पैरेलल वेक्टर्स इनटू लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। या Sumit, good. Now we are going to take equal vectors. ठीक है, these are the vectors of having equal magnitude and same direction. ठीक है, तो तब हम इसको क्या कहेंगे, we used to call as equal vectors. So the equal vectors is shown below, नीचे दिखाया गया है, ठीक है, in the diagram, या shown below enough है, इतना enough है, ठीक है। चलो, so what we are going to see here, equal vectors, मैंने दो वेक्टर्स लिए, ठीक है, एंड दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम लिया, ठीक है। सो मैंने तीन वेक्टर्स लिए और तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम लिया। कैन वी कॉल ऑल ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं हम, या सिर्फ दो ही वेक्टर्स का कंडीशन होना चाहिए? टेल मी। All, because into the definition they have nowhere mentioned that it should be only two. These are the vectors of having equal magnitude and same direction. So such type of vectors are called as equal vectors. Rakshita, Rakesh, Pari, Priyanka. Okay, good. You people are getting what I'm trying to say. Vaishnavi, fine. हो गया? तो इसको चलो रब करते हैं। इक्वल वेक्टर्स तो हो गया, वैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो एंड वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर किड्स, आपको यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी ये चीज लिखना पड़ेगा कंपलसरी, यू शुड राइट दिस थिंग और एल्स इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज वेक्टर्स, है ना? ये चीज आपको दिमाग में याद रखना है, because into the exams you should not forget these things, vector a vector b vector c, जो भी आप नेमिंग करते हो according to situation scenarios, ठीक है? पक्का विल राइट, ओके वेरी गुड प्रियंका राठौड़, पक्का माय वर्ड, ठीक है। सो इक्वल वेक्टर्स तो पता चल गया आपको, जहां पे हम लोगों ने तीन वेक्टर्स का डायग्राम डाला था, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकली अगर उसको लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखोगे? यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? डायग्राम डालते हो, ठीक है। टेक वेक्टर MKH Vikas. Yes, you can take Vikas. See here, what Vikas is asking, he is asking that sir, ये आपने तीन वेक्टर्स ऐसे लिख डाले थे और आपने बोला वेक्टर A B C, क्या सर हम इसको वेक्टर M वेक्टर K एंड वेक्टर H ले सकते हैं? यस माय डियर किड, यू कैन टेक दैट, बट यू शुड मेंशन दैट कि सिनेरियो क्या है, सीन क्या है, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर हो रहा है? So this is very much easy. Okay, very much clear. Thank you, my dear kids. So now, as I said that कि unlike vectors तो हमने देख लिया, फिर equal vectors देख लिया, like vectors देख लिए, parallel vectors देख लिए. Now we are going to take co-initial vectors. ठीक है? Co-initial vectors होते क्या हैं? ठीक है? Co-initial vectors.
So what are co-initial vectors? These are the vectors having same initial point. ठीक है, these are the vectors having same initial point. मतलब एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं, ठीक है, यू आर हैविंग मोर देन टू, या दो कह लो या दो से ज्यादा कह लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से ज्यादा है वेक्टर्स, ठीक है, ऑल विल बी हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट. अगर सेम इनिशियल पॉइंट यहां से आप इसको इनिशियल पॉइंट रख रहे हो, इफ दिस इज द ओरिजिन, एंड फ्रॉम हियर यू आर सिंपली प्रोपोगेटिंग वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि यहां से आप वेक्टर्स का डायरेक्शन दिखा रहे हो ऐसे, ठीक है, और ये आपका आपने यहाँ पे ले लिया, देन दिस इज लाइक दिस, ठीक है. So four vectors for the consideration sake of the examples I have taken, I have chosen, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? For this we are going to call this as co-initial vectors. इसको हम लोग mixed magnitude and direction कुछ भी रहेगा, मतलब equal रहना ऐसा कुछ नहीं है condition. Here there will be no condition of having equal magnitudes or same direction, because यहाँ पे क्या है, initial point same है. और ये ऐसा भी हो सकता है, it may be possibly like this. कैसे? Say for example, यू आर शोइंग लाइक दिस, आपने एक वेक्टर ऐसा दिखा दिया, एंड यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ओनली टू वेक्टर्स, आपने दो वेक्टर्स का एग्जांपल्स ले रहे हो, एंड द डायरेक्शन इज सेम, मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट, ओके, बट द इनिशियल पॉइंट रिमेनिंग सेम, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी यूज्ड टू कॉल दिस एज कोइनिशियल वेक्टर्स. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? बिकॉज ऑल द वेक्टर्स आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ओवर द ओरिजिन, ठीक है. इज दैट क्लियर? Okay. Vaishnavi, Srushti, Rakshita, Pari, good. Sumit, good. Everyone is getting. Sanket, good. Fine. So, my dear kids, these concepts are very much easy. Sumit, good. Anushka Gudi, Priyanka Rathod. सारे के सारे concepts बहुत easy है. ऐश्वर्या and सौंदर्या. Don't get stuck up with the concepts and don't get confused. Confused मत रहो. कुछ भी difficulty रहो वहीं पे stop करो मुझे और पूछो, ठीक है. समझना जरूरी है फिजिक्स में, बाहर करना नहीं. बिकॉज कितने बार आप चीजों को समझोगे उतने बार आपको फिजिक्स बेहतर बनते जाएगा. मींस बहुत बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके फिजिक्स समझ में आएगा. यू शुड नॉट बाय हार्ट दीज थिंग्स लाइक यू यूज्ड टू डू इन एसएसएलसी, है ना. एसएसएलसी में आप लोग क्या करते थे? बाहर करते थे, रट्टा मारते थे. सो आपको कोई डेट याद रखना पड़ता था हिस्ट्री का, और एल्स ज्योग्राफिकल मैप्स, ज्योग्राफिकल मैपिंग का जो नेमिंग्स होते हैं ना वो, ठीक है ना. सो दैट इज मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट, दिस इज लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट. तो इसमें आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है पढ़ने के बाद, क्योंकि आप इंग्लिश की तरह सिर्फ पढ़ते जाओ और स्टोरी याद रखते जाओ, ऐसा नहीं रहता इसमें. ओके, एनीहाउ. सो कोटर्मिनस वेक्टर या इमेजिनेशन संकेत, कोटर्मिनस, कोटर्मिनस वेक्टर्स, ठीक है. मतलब टर्मी, टर्मी क्या होता है बताओ मुझे? टर्मिनेशन, खत्म कर दो, एंडिंग, है ना. टर्म क्या होता है? टर्म, टर्मी, एंड पॉइंट. ये क्या बताता है आपको? एंड पॉइंट, है ना. सिंपल है, सेम एंडिंग पॉइंट. प्रियंका राठौड़, वेरी गुड. बहुत ही इजी है ना, चीजें टर्म के हिसाब से समझनी चाहिए बस. वेरी गुड वैष्णवी. ओके, सो दीज आर द वेक्टर्स.
having same having ये संतोष फोन करायलाय बघ माझं क्लास आहे having same terminal point. These are the vectors having same terminal point. ठीक है, इसको हम कहते हैं coterminous vectors. ठीक है. Now listen up my dear kids. I am putting an ending point. ठीक है, मैं यहाँ पे ending point लगा रहा हूं. So the first vector I am applicating over what? This single point, and the second one and the third one. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 4 वेक्टर्स को एक ही पॉइंट पे क्या करा, अप्लीकेट करा. सो विद दिस वी केम टू नो दैट कोटर्मिनस वेक्टर्स क्या होते हैं. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कोटर्मिनस वेक्टर्स. ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ टू कार एंड पॉइंट्स. टू कार एंड पॉइंट्स मींस प्रियंका राठौड़, यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट्स, है ना. 2 कार आए, दोनों भिड़ गए, है ना, क्रैश. सो सही है, बिकॉज यू नो एक तरफ से फोर्स अप्लीकेट कर रहे हो, दूसरी तरफ से भी फोर्स. कोटर्मिनस वेक्टर्स, क्रैश. ठीक है, सो इसको चलो रब करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है. 3 रिवर टू 1 पॉइंट. क्या है देखो बच्चों, मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स बहुत ही अमेजिंग रहते हैं आप लोगों के. ठीक है, द एग्जाम्पल्स विल बी अमेजिंग सुमित, बट रिवर विल बी नॉट अ वेक्टर, क्योंकि वो बहते रहता है. फॉर एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर विल चेंजेस, है ना, तो स्ट्रेट रहना चाहिए. या ठीक है, ओके, यू गॉट दिस. नाउ कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है, कई बार कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे भी लिखा जाता है कई जगह पे, और कुछ उसका तरीका लिखने का कुछ जगह अलग होता है, लाइक दिस. फाइन, डिपेंड्स बुक्स में कैसे लिखा गया है. ठीक है, सो फिर डोंट गेट कंफ्यूज कि यार ये वाला कोलिनियर कौन सा है, वो वाला कौन सा है. ठीक है, या ओके. सो कोलिनियर का मतलब क्या पता चल गया आपको, बताओ. These are the vectors. ठीक है, these are the vectors. These are the vectors. हमने को-इनिशियल वेक्टर बताया था, राइट है. तो मैंने उसमें एक एग्जांपल बताया था where I was showing the vectors are moving in all directions. ठीक है, बट दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बताया था, using the same point with same direction but not having equal magnitude, है ना. तो वो एग्जांपल कैटेगरिकली कोलिनियर वेक्टर्स का है, बट कोइनिशियल का कब यूज कर सकते हैं, बाय सिनेरियो वाइज, बाय कंडीशन वाइज. ठीक है, सो दीज आर द वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम लाइन. These are the vector moving in a single direction is called collinear vectors. Okay, सेम लाइन, ये आप चीज हाईलाइट कर सकते हो बच्चों. ठीक है, सो इसके लिए मुझे कलर अलग लेना पड़ेगा, as I said, and no need of taking a reference of single point, but single point का reference चाहिए. क्यों चाहिए, क्योंकि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो वो चीज चाहिए ना, from where you are starting. So this is your single vector. ठीक है, and another vector you are taking
फ्रॉम हियर, तो आप ऐसे दिखाओ। सो थर्ड वाला वेक्टर दिखाओ, कौन सा, ये वाला ग्रीन। सो कैन वी टेक these three vectors is as example of what, collinear vectors. So these are the vectors, दो या दो से ज्यादा एक्टिंग इन द सेम लाइन, तो आप इसको क्या कहते हो, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हो। ठीक है, यस परिजैन, प्रियंका, सुमित, प्रियंका राठौड़, ओके फाइन। तो कोलिनियर वेक्टर्स का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो नाउ कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स? कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है? जो भी वेक्टर्स प्लेन में पड़े रहेंगे उसको कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? जो भी वेक्टर्स प्लेन में पड़े रहेंगे सेम प्लेन में, उसको क्या बोला जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इसको आप कैसे लिखोगे? दीज आर द वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन। अभी एक प्लेन है, ठीक है, तो वेक्टर्स का डायरेक्शन रहेगा ना, द वेक्टर्स डायरेक्शन, नॉट दैट प्लेन माय डियर किड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सेम प्लेन, प्लेन मतलब उड़ता वाला प्लेन नहीं है, मेरी बात समझो बच्चों। दिस इज द बोर्ड, दिस इज द बोर्ड। तो बोर्ड में क्या रहेगा, एक आपका एक्स एक्सिस रहेगा, दूसरा वाई एक्सिस रहेगा, है ना। तो मैं यहां पे एक्स एक्सिस, वेट, एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी आप वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ले लो, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, या ऐसे, ठीक है, चलो ऐसे, जो भी है, ओके। सो इफ यू आर यूजिंग दिस प्लेन, अभी ये प्लेन कैसे बन गया सर? दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम सर, ये प्लेन कैसे बन गया? सो आई विल टेक अ ग्रीन कलर एज वेल एज अ फ्रेम, फोटो फ्रेम। तो मैंने ऐसे एक फोटो फ्रेम डाला जिसमें मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को डाला। सो द प्लेन ऑफ दिस फोटो फ्रेम, तो ये जो प्लेन है ना, तो इस प्लेन में ये जो वेक्टर लाई कर रहा है, इट इज एक्टिंग, दिस वेक्टर इज ऑल्सो लाइंग इन द सेम प्लेन ऑफ दिस फ्रेम, है ना। तो ऐसे कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 वेक्टर्स आर लाइंग, 6 वेक्टर्स आर लाइंग इनटू द सेम प्लेन। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सारे वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है ना बहुत, समझने के लिए। समझने का तरीका बहुत ही इजी है इन चीजों को, ठीक है। नाउ the which lie in the same plane is called coplanar vector ना सर? या यस, मतलब सारे के सारे वेक्टर्स जो भी उस प्लेन में, एक पेपर लिया, उसी पेपर में, उसी पेपर में सारे वेक्टर्स हैं, तो उसको कोप्लेनर वेक्टर बोला जाएगा। अभी एक मैं और एक एग्जांपल दूंगा बच्चों, प्लीज सी दिस थिंग। ये मैं क्या कर रहा हूं, नो नॉट दिस, मैं एक अलग तरीके का प्लेन लूंगा। सी दिस इज योर प्लेन ऑफ पेपर, ये आपका पेपर है, ठीक है। आई एम टेकिंग द रेड एरोज, है ना, रेड एरोज ले रहा हूं सिंपली टू शो द वेक्टर्स इनटू दिस प्लेन। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस लिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। सो इट इज लाइंग इन द सेम प्लेन्स, ठीक है। सो हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, बताओ मुझे फट से बताओ कितने वेक्टर्स हैं इसमें। हाउ मेनी वेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वेक्टर्स हैं।
all 7 vectors are lying in the same plane of the paper, है ना? So these are called as coplanar vectors. Coplanar vectors. Now I will take the blue color vectors. एक वेक्टर को मैंने ऐसे लिया आउट ऑफ द प्लेन, एक वेक्टर को मैंने ऐसे लिया आउट ऑफ द प्लेन, तीसरे वेक्टर को ऐसे लिया और चौथे वेक्टर को ऐसे लिया आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो फिर एक वेक्टर को इधर मूव करके लिया। ठीक है, तो फिर एक वेक्टर को ऐसे लिया आउट ऑफ द प्लेन। तो टेल मी टोटल वेक्टर्स कितने हैं, बताओ मुझे टोटल वेक्टर्स कितने हैं? 13 वेक्टर्स आर देयर, ठीक है ना? 13 वेक्टर्स आर देयर। क्या 13 के 13 कोप्लेनार हैं? क्या 13 के 13 कोप्लेनार हैं? नो। तो कितने कोप्लेनार्स हैं? हाउ मेनी? ओके, उमेश, परी, वैष्णवी, रक्षिता, सुमित, 7 are coplanar. So how many of are non coplanars? 6. Very good. 6 आपके नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स हैं, मतलब एक प्लेन में लाई नहीं करते वो। दिस इज क्लियर, ये आपको बहुत ही क्लियर हो गया है ना? सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, सो यू गॉट दिस पॉइंट, आपने ये चीज को समझ लिया। ठीक है, चलो। यस सर, अंडरस्टूड। सुमित, प्रियंका, रक्षिता, सेम प्लेन में अगर एक्ट करते हैं तो उसको कोप्लेनार वेक्टर्स कहते हैं, सिंपल है। ओके वैष्णवी, सृष्टि, फाइन। So listen up, my dear kids. Now what I'm going to make a point, negative of a vector, negative of a vector। ठीक है, तो इसका मुझे आपको पॉइंट बना के दिखाना पड़ेगा। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या है? इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो ये बच्चों, ये चीज हाईलाइट करना जरूरी है, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो सिंपल है, यू आर गोइंग टू टेक अ वेक्टर ए। ठीक है, तो इसके बदले में रिवर्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लेते हो। ठीक है ना? so this will be called as vector a and this will be called as minus vector a। so minus vector a is nothing but negative of a vector। a vector क्या है? a माने a नहीं, ये हो सकता है आपका वेक्टर b हो। ठीक है, then also this is a vector, any vector। a in the sense इंग्लिश में क्या होता है? any vector, कोई भी वेक्टर। ठीक है, तो तब ये क्या बन जाता है? so this is also माइनस ऑफ वेक्टर b। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। सृष्टि, रक्षिता, वेरी गुड। सो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आपको पता चल गया कंसेप्ट क्या है। तरीका बहुत ही सलीस और सिंपल है चीजों को समझने का। ओके, अनुष्का, प्रियंका, ऐश्वर्या, सुमित, गुड। ओके, दिस इज ओवर। तो हमने बहुत सारे टाइप्स देखे आज वेक्टर्स में, ये बहुत ही इजी थे। मुझे मेन चीज आपको समझाना था जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट, बिकॉज दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नहीं यार, वेक्टर्स आर ओवर सर। नहीं सुमित, अभी है। ठीक है, अभी अभी मेन चीज है, अभी मेन चीज है। ठीक है, ओके लिसन, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ठीक है,
फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर, फिक्स कह लो या लोकलाइज्ड वेक्टर कह लो, दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पे क्या है, इट इज द वेक्टर whose it is the vector whose initial point or tail is fixed। मतलब क्या है, whenever you're choosing a vector, एक वेक्टर लेते हो और आप कहते हो कि दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, ठीक है, तो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट O एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट A। सो यू वांट टू ऐड दिस वेक्टर, तो ये वेक्टर जो है ना बच्चों, से फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको इनिशियल पॉइंट को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चों। इन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू कैन नॉट चेंज द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, तो जो इनिशियल पॉइंट रहेगा वो फिक्स रहेगा। और लोकलाइज्ड वेक्टर दैट इज वन एंड सेम एज फिक्स्ड वेक्टर। मतलब इस केस में आप वेक्टर शिफ्टिंग जो करते हो दूसरे केसेस में, यहां से लेके उठा के यहाँ पे रखते हो कंपेयर करने के लिए दूसरे वेक्टर के साथ, वो चीज नहीं कर सकते। सो ये डिस्प्लेसमेंट यहीं पे रहेगा क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट वहीं पे रहेगा। जब वो वापस उसी पोजीशन पे जाएगा, व्हेन द व्हेन द वेक्टर व्हेन द बॉडी विल बी गोइंग टू रीच द सेम पॉइंट, तब डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होगा, ठीक है ना। तो आप इस केस में क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मूव द वेक्टर। सो सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एज फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो बेस्ट इसके लिए एक एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। सो द इनिशियल पॉइंट ऑफ द पोजीशन of the position vector is fixed, ठीक है। अगर कोई भी इनिशियल पॉइंट किसी भी पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, फिक्स रहे, ठीक है, एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स रहे किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो तब ये फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज अ फिक्स्ड वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का केस आता है ना। सो वी नीड टू कंसीडर व्हाट, वी नीड टू कंसीडर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को कंसीडर करना पड़ता है एंड द फाइनल पॉइंट वेयर यू आर रीचिंग। तो आप वेक्टर को उठा के नहीं रख सकते बिकॉज इनिशियल पॉइंट तो दूसरा है, तो पोजीशन ऑफ द इनिशियल पॉइंट इज डिफरेंट। फाइन, ओके। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, वेक्टर शिफ्टिंग नहीं कर सकते। शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, मैं वेक्टर शिफ्टिंग करके क्या कर रहा था लास्ट, जब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, by using vector shifting method we are trying to find out the angle lying between two vectors, one thing, to get the resultant of that vector, or else by adding we are having the resultant of that more than two or more than two vectors, ठीक है। प्रियंका, ओके अंडरस्टूड सर। रक्षिता, वैष्णवी, ओके सुमित, रक्षिता कांबळे, फाइन, you got that, okay fine, very nice। So okay Aishwarya and Saundarya, you're getting, I'm getting that you're getting, ठीक है। So free vector or free vector or non localized vector
ठीक है, टू ऑफ आर वन एंड सेम। जैसे फिक्स और लोकलाइज्ड एक ही थे, वैसे फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स बोथ आर वन एंड सेम which are not fixed. Okay, प्रियंका, ओके गुड। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल्स क्या रहेगा? इट इज, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द वेक्टर whose initial point or tail is not fixed। बस उसको फिक्स्ड की बजाय नॉट फिक्स्ड को रख के मॉडिफाई करना है, दैट्स इट। नॉट सेम इनिशियल पॉइंट। ओके, so what you're going to do? So first of all I'm going to write an example here। ठीक है, तभी हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, not same initially point, sir। okay, velocity vector। In the velocity vector, you know my dear kids, every time whenever the velocity changes, it means that the displacement covered, the displacement made by the body with respect to time। So for every instant of time, the displacement made by the body may be same or may not be same। तो उस वजह से क्या हो जाता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट या स्पेसिफिक डिस्टेंस है, वो ज्यादा या कम होता है। उस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, वी आर चेंजिंग द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड फॉर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, सो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, velocity vector of a particle moving along a straight line। ठीक है, is a free vector। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर बताऊंगा। आई एम गोइंग टू शो यू विद द एग्जाम्पल माय डियर किड्स। ठीक है, देखो बच्चों, सो आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेयर द एरो मार्क शोज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग। नहीं, वेट करो, विद दिस आई एम गोइंग टू शो दैट, ऐसे। ठीक है, नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, एक चीज मैं आपको हाईलाइट कर दूं। So from this initial point, say for example, the displacement made by a body for first second is this much। कितना? एक 5 मीटर समझ लो। For next second it covers 7 meter। For the third second it covers the 2 meter। Then again for uh, fourth second it is 4 meter। For then next second it is somewhat 8 meter। तो ये आपका 5 मीटर था। ठीक है, तो फिर ये आपका 7 मीटर था, फिर ये आपका 2 मीटर था, ये 4 मीटर था, ये आपका 9 मीटर समझ लो। सी हियर, फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऑल्दो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ मुझे, ऑल्दो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी। सो यू कैन कॉल दिस एज एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर में भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देख लो, इनिशियल पॉइंट्स सबके चेंज हो रहे हैं। मींस फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट इट विल बी फाइनल पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक इट इज चेंजिंग। फ्रॉम अगेन यहां से लेके यहां तक इनिशियल पॉइंट ये बन रहा है, ये फाइनल पॉइंट बन रहा है। फ्रॉम यहां से लेके यहां तक फॉर नेक्स्ट इंस्टेंट इनिशियल ये बन रहा है, फाइनल ये बन रहा है। सो दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मींस एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस, डिसेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। अभी मैं एक चीज बताता हूं यहाँ पे, instead of taking these things, मैं ये चीज लेने के बजाय what I'm going to do, I'm going to distribute the displacement made by the body। if this is 5 meter, ठीक है, तो next फिर से 5 मीटर लूंगा मैं, then again 5 मीटर लूंगा, then again 5 मीटर लूंगा, then again
5 मीटर लूंगा। सी हियर, सो ओवरऑल 30 मीटर का डिस्टेंस है, समझ लो, मान के चलो। फॉर एवरी सेकेंड द इनिशियल पॉइंट इज चेंजिंग। अगर इनिशियल पॉइंट पहले यहां था तो 5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर करा, सो इट हैज रीच्ड फाइनल पॉइंट। नाउ the for the first instant this is final point, but for the next instant this is initial point, ये आपका initial point है। तो यहाँ पे क्या हो गया, initial point फिक्स नहीं रहा, यहाँ पे चेंज करा, मींस either for uniform motion or for non uniform motion the initial point is changing। ठीक है, क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? so if this initial point is changing continuously, so what it means, ये आपको क्या बता रहा है? so this is meant nothing but, या ये आपको चीज बता रहा है कि 30 मीटर ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 6 seconds, बट फॉर एवरी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक 10 मीटर है, मतलब यू कैनॉट टेक फॉर नेक्स्ट इंस्टेंट यही इनिशियल पॉइंट, यू आर टेकिंग दिस वन। ठीक है, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर द इनिशियल पॉइंट या टेल, टेल मतलब क्या, कोई भी वेक्टर ले लो, जो वेक्टर आप प्रोसीड करते हो, ठीक है, या तो आप इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हो या इसको आप टेल बोलते हो। सो टेल और इनिशियल पॉइंट इज चेंजिंग। ठीक है, क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? या थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंसली माय डियर किड्स। राकेश अयोली, परी जैन, सृष्टि नांदेड़, प्रियंका, ठीक है, वैष्णवी, विकास, रक्षिता, ओके, ऐश्वर्या एंड सौंदर्य। My dear kids, I'm going to stop this class. This is 152. You know what? Today link cut nahi hua. पता नहीं कैसे. I'm not getting that. How? Or else it will be going to get cut within 40 minutes. 40 minutes का उसका एक time span होता है. This is free version. लेकिन यहाँ पे cut नहीं हुआ link. So I was shocked. कैसे नहीं हुआ? मुझे लग रहा है link अभी cut होगा, बाद में cut होगा. I don't know how. Somewhat magic. Yeah. Anyone can take the attendance. Please give the attendance. Sana Sagar updated. Okay, Sana Sagar ले लो, कोई भी ले लो. So you need to send me to my contact number. That's it. Vaishnavi, please. Okay. Sumit. Okay. Samir is not present today, I think. Anyhow, मैंने बोला, for every time I used to request my students that to grow my channel, please help me send the link of these videos to your other college friends. Ask them to send to their friends of other college and ask them to like as well as comment into the comment box of my YouTube channel. So share it more and more and subscribe it. Okay, so please be a genuine user of my channel. Don't, कहते हैं ना वो डालने के बाद फट से लाइक मारते हो, सर आई हैव लाइक्ड योर वीडियो, आई डोंट वांट दैट. डू वॉच माय वीडियोस इफ पॉसिबल ऑफ कंप्लीट लेंथ. एक बार यहाँ पे आप जो भी सुनते हो, नोट्स बनाते हो, और एक बार वीडियो आपने देख लिया ना, सो कहते हैं ना वो दिमाग में जाके फिट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन होते रहता है व्हेनेवर आई एम एक्सप्लेनिंग द कंटेंट. बट व्हेन यू गो देयर, सिंगल बैठ के सीधा हेडफोन डाल के देखते हुए बैठोगे ना, तो आपके दिमाग में पक्का सब्जेक्ट जाएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो इंटरेक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान भटकता है. ठीक है, सो वहां पे आप कंप्लीटली शांत तरीके से देख सकते हो. एंड यू विल बी हैविंग टाइम नाउ ओनली. अभी आपके पास टाइम है, टाइम कभी भी वापस नहीं आता है, टाइम विल नॉट बी रीगेन्ड. So notes will be sent within 10 or 15 minutes, my dear kids. Please